Be aware of your breath. Incoming and outgoing breath. अंदर आती हुई और बाहर जाती हुई सांस की तरफ अपना ध्यान करें. आत्मा नमस्ते मैम. आत्मा नमस्ते. Be aware of the whole body simultaneously. अपने सांसों के साथ साथ अपने सारे बॉडी का ध्यान करें. Be aware of your eyebrow center. Visualize your guru, your isht, or a light, bright light in the center of your eyebrows. Keep visualizing this bright light or the image of your guru or your isht. We'll chant 3 ohms together. Inhale slowly. Om. 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 Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwaraha, Guru Sakshat Parabrahma, Tasmai Shri Gurave Namaha, Tasmai Shri Gurave Namaha. Just bow your head to your Guru who resides in our Ajna Chakra. Ask for the blessings, for the grace, Anugrah. Accept the blessings. ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. हरिः ओम्. Hari Om Tat Sat. Just rub your palms together. Gently place your palms on your eyes. Feel the warmth. And with a very big smile,
Slowly and gently open your eyes. Atma Namaste, everyone. I salute the divinity within you. I salute the Ram residing inside you, the Hanuman residing inside you. Atma Namaste. So, yesterday we were talking about Hanuman's connection with Kal Bhairav and Kashi. Now, Tuesday and Saturday access. Let's see what uh, is written here. In Hindu tradition of sacred days, Tuesday, Mangalwar is Hanuman's day, and Saturday, Shanivar is associated with both. Ma'am, page number, please. Page number is 72. Okay, thank you. Saturday is associated with both Shani and Kal Bhairav. This is not coincidental. Both Hanuman and Kal Bhairav are worshipped as protectors against the malefic influences of Saturn and the shadow planets Rahu and Ketu. Saturn represents karma, the accumulated weight of past actions, the slow grinding of time's consequences. Kal Bhairav, as the lord of time, has sovereignty over Saturn. And Hanuman, through his powers of divine grace, is said to be able to neutralize even the harshest karmic difficulties because where Ram's grace falls, karma's rigid laws bend. Devotees facing notorious Sadhasati, 7.5 years period of Saturn transit that brings great trials, are advised in both the Jyotish tradition and the Bhairav Agams to worship both Kal Bhairav and Hanuman simultaneously. Bhairav accepts the karma and transforms it, and Hanuman fills the gap left by karma's weight and with divine grace and courage. So, Saturn, Mangal, Mars, Rahu and Ketu. इनके जब भी कोई नेगेटिव इम्पैक्ट्स हमारे हॉरोस्कोप पे आ रहे हैं, सो हनुमान जी की साधना करने से, काल भैरव की साधना करने से, और टुगेदर बोथ वी इफ वी डू साधना ऑफ बोथ, सो इनके जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं, ना नेगेटिव जो इम्पैक्ट्स हैं हमारी लाइफ पे, वो खत्म किए जा सकते हैं, उनको इरेडिकेट किया जा सकता है. बहुत बार ऐसे होता है हम सब हमारी लाइफ में कि हम एक काम करना चाह रहे हैं, लेकिन जब भी हम वो काम करना चाहते हैं उसमें कोई ना कोई ब्लॉकेज आ जाती है, या फिर हम लोग काम करना चाहते हैं, वो काम शुरू हो जाता है लेकिन वो डिले 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 होता जाता है, या हम कोई काम करना चाहते हैं वो शुरू ही नहीं हो पाता है. ठीक है. या हम कोई काम करना चाहते हैं उसमें बहुत सारी आउटर जो कई बार आउटर ब्लॉकेजेस आती है, कभी इनर ब्लॉकेजेस आती हैं. तो ये सारी एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम इनकी बात करते हैं तो ये यहाँ तो मंगल से कनेक्टेड होती है, या ये शनि से कनेक्टेड होती हैं, यहाँ ये राहु से, यहाँ केतु से. इन चार प्लैनेट्स के ही नेगेटिव इम्पैक्ट से मेजरली हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, ऑब्स्टेकल्स आती हैं. तो जब हम भैरव साधना और हनुमान साधना एक साथ करते हैं तो इसका इम्पैक्ट हमारी लाइफ में खत्म हो जाता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है, नलीफाई हो जाता है. इसलिए हनुमान जी की साधना अगर आप करते हैं और साथ में आप भैरव साधना करते हैं तो उसका बहुत इम्पैक्ट है. दोज हु डू नॉट नो हाउ टू डू भैरव साधना, दे कैन सिंपली चांट हनुमान चालीसा, और हनुमान चालीसा से पहले आप ओम भैरवाय नमः का चांट कर सकते हैं. सो अगेन जब हम काल भैरव की साधना करते हैं, जब हम काल भैरव की चांटिंग करते हैं, तो फियर्स जितने भी हमारी लाइफ में हैं, पास्ट लाइफ से आ रहे हैं, इस लाइफ टाइम में हमारे पास्ट से आ रहे हैं, या हमें फ्यूचर का कोई फियर है, वो सारे के सारे धीरे धीरे खत्म होने लग जाते हैं. और हनुमान जी क्या करते हैं? हनुमान जी हम लोगों को आ, हम लोगों को वो स्ट्रेंथ देते हैं, वो विजडम देते हैं, ताकि हम वो सारी की सारी जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं लाइफ की, हम उनको खत्म कर सके और उनको फेस कर सके.
सुंदरकांड का पाठ जब हम करते हैं, हनुमान जी का जो सुंदरकांड का पाठ जब हम करते हैं, सुंदरकांड का पाठ करने से क्या होता है कि जो डिवाइन एनर्जी है वो हमारी इनकारनेटेड सोल तक पहुंचती है, और इनकारनेटेड सोल का जो मैसेज है वो हमारा डिवाइन तक पहुंचता है। वो जो सर्कल है हमारा, डिवाइन टू इनकारनेटेड सोल एंड इनकारनेटेड सोल टू डिवाइन, वो पैसेज क्लियर हो जाता है। दिस इज व्हाट हनुमान जी डज, एंड दिस इज व्हाट सिग्निफाइज हनुमान जी क्रॉसिंग द ocean when he went to Lanka, and he took ring for Sita given by Ram, and then on way back वो चूड़ामणि देती हैं सीता जो है, वो राम को प्रेजेंट करते हैं। सो जितनी भी ब्लॉकेजेस आती हैं रास्ते में, लंका में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी रास्ते में ओशन क्रॉस करने वक्त, ओशन क्या है, हमारा अनकॉन्शियस माइंड है। ओशन में जब क्रॉस करते हैं तो क्या आता है, जब हम अपने अनकॉन्शियस माइंड को क्लीन करते हैं तो पहले क्या आता है, मैनाक पर्वत आता है। मैनाक पर्वत क्या कहता है, वो कहता है रुक जाओ, थोड़ी देर बात करना, थोड़ा रेस्ट कर लो, है ना। मैनाक पर्वत ने क्या कहा था, तुमने इतना जबरदस्त छलांग लगाई है, इतना यू हैव टेकन अ ग्रेट लीप, सो व्हाई डोंट यू रेस्ट फॉर सम टाइम। तो मैनाक पर्वत बोलता है कि आप थोड़ा रुको और रेस्ट कर लो। और हम भी जब कोई काम करने जाते हैं ना, कहते हैं चल कल कर लेंगे, कोई बात नहीं। दैट इज द सिग्निफिकेंस, दैट इज द सिंबोलिज्म ऑफ मैनाक पर्वत। बट हनुमान जी क्या कहते हैं, राम काज पहले, पहले मैं राम काज खत्म कर लूं, रेस्ट मैं बाद में करूंगा। तो दिस इज इरेडिकेशन ऑफ आवर लेजीनेस, जो फिजिकली हमारी हमारे लाइफ में लेजीनेस आती है। सबसे पहले सुंदरकांड जब हम वो जब हम लोग चौपाई पढ़ते हैं, तब हमारी जो है वो फिजिकल लेजीनेस, लेट मी गिव यू द चौपाई। हम्म। जीबी अमोघ रघुपति कर बाना, यही भांति चले वो हनुमाना। अब हनुमान जी ने छलांग लगाई है। जल निधि रघुपति दूत बिचारी, तय मैं नाक हो ही श्रमघारी। वो कहते हैं हनुमान ते ही परसा, कर पुनि कीन प्रणाम, राम काज कीन बिना, मोहि कहाँ विश्राम। तो मैनाक पर्वत उनको कहता है, दिस इज दोहा नंबर 1। सुंदरकांड में पढ़ रही हूँ, सुंदरकांड में से है ये। सो सबसे पहले यही होता है कि जब वो लीप लेते हैं, जब वो छलांग लगाते हैं, सबसे पहले मैनाक पर्वत आता है और उनको कहता है कि ओशन में से निकलता है, और वो कहता है कि मैं जो हूँ वो मैनाक पर्वत हूँ, तो तुम इतना श्रम कर रहे हो, तुम इतनी मेहनत कर रहे हो, तो थोड़ा तुम रेस्ट कर लो। तो हनुमान जी क्या कहते हैं, हनुमान जी ने उनको स्पर्श किया, प्रणाम किया और कहा थैंक यू सो मच, आपने मेरे को ये ऑफर दिया, बट राम काज कीने बिना मोहे कहाँ विश्राम। सो राम काज, जब तक जो मैं काम करने जा रहा हूँ, जो मैं अपने गुरु का काम करने जा रहा हूँ, जब तक मैं वो नहीं कर सकता हूँ, कर लेता हूँ, तब तक मैं रेस्ट नहीं करूंगा। सो दिस इज अ लेसन फॉर अस एंड दिस एक्चुअली हैपेंस विद अस। जब हम इसको पढ़ते हैं और हम इसको अंडरस्टैंडिंग से पढ़ते हैं कि हर जो हमें सुंदरकांड क्या पढ़ा रहे हैं, जो हमारे टेक्स्ट हैं, वो हमें बताना क्या चाह रहे हैं। सो टेक्स्ट हमें बताना चाह रहे हैं, जब भी हम कोई भी काम करने जाते हैं, कोई भी हम एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि हाँ मुझे ये काम करना है, से मुझे आज यहाँ जाकर ये डील फाइनल करनी है, तो रास्ते में अगर ये कैफी कॉफी डे आ गया तो मैं छोड़, बाद में चलेंगे, चलो पहले रास्ते में कॉफी पी लेते हैं। सो नहीं, राम काज कीने बिना मोहे कहाँ विश्राम। ऑलवेज कीप दिस इन माइंड, मैं जो करने जा रही हूँ पहले मैं उसको करूंगी, खत्म करूंगी, उसके बाद आई विल सिट एंड हैव कॉफी रिलैक्स होके। तो फिर जब सारा काम करके जब हनुमान जी चले गए थे ना, जब सीता को लेके चले गए थे, तो सीता ने कहा था कि मैं तुम्हें भोजन कराऊंगी, तो इतना खाना खाया हनुमान जी ने, इतना खाना खाया, इतना खाना खाया, उनकी भूख ही नहीं मिट रही थी। वो कहते थे और जलेबी ले आओ, वो कहते और लड्डू ले आओ। तो खाते जा रहे थे, खाते जा रहे थे, खाते जा रहे थे। तो सीता जो थी, सीता माँ जो थी, वो परेशान हो गई।
तो रामचंद्र जी ने देखा कि ये तो सीता परेशान हो रही है। उन्होंने कहा क्या प्रॉब्लम है? तो उन्होंने कहा कि ये तो खाता ही जा रहा है, तो हट ही नहीं रहा है, ये तो खा ही जा रहा है, खा ही जा रहा है। फिर श्री राम ने उनको कहा कि इनको एक तुलसी का पत्ता खिला दो। सो तुलसी का पत्ता लड्डू में मिक्स करके खिलाया, तो उनको एकदम से तुलसी खा के जो थी वो शांति आ गई। दिस इज द स्टोरी। क्यों? क्योंकि इतने टाइम से वो सिर्फ ही वॉज फोकस्ड on his guru's work. And this is what is happening with me these days. So I was so much into, I mean, doing ashram ka kaam and running around the whole day. I was not sleeping वहां पर, 2-3 घंटे सोने को मिल रहा था। और अब जब मैं परसों से आई हूँ, आई एम स्लीपिंग, आई एम ऑन स्लीपिंग मोड। सो वो मेरा वही वही वाला फेज चल रहा है अभी। सो जब आप कोई एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, सी ये जो स्क्रिप्चर्स हैं, दिस इज नॉट ओनली द स्टोरी, दिस इज नॉट ओनली द स्टोरी ऑफ राम, हनुमान, सीता, रावण। दिस इज द स्टोरी ऑफ राम, हनुमान एंड सीता हु आर इनसाइड अस। दिस इज माई स्टोरी। ठीक है? तो इसलिए अगर हम उसको अंडरस्टैंडिंग से देखेंगे, अगर हम उसको समझेंगे कि हमारे स्क्रिप्चर्स, हमारे ये दोहे, हमारे ये जो कॉन्वर्सेशंस हैं, हमारे, रामायण इज बेसिकली अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन सीता एंड, सॉरी, शिव एंड पार्वती। इट इज अ कॉन्वर्सेशन। ठीक है? तो जब ये कॉन्वर्सेशंस हो रही हैं, जब भगवान शिव जो हैं वो सीता को बता रहे हैं, पार्वती को बता रहे हैं कि क्या क्या हुआ, सो उसके पीछे एक स्टोरी है हमारे ह्यूमंस के लिए, हमारे लिए वो मेडिटेशन के चीजें हैं। एंड ऑल्सो कैसे, क्यों सुंदरकांड करने से आपकी चीजें मैनिफेस्ट होती हैं? क्योंकि आपका ये जो सर्कल है ये पूरा हो जाता है, ये सारी हर्डल्स निकल रही हैं। सबसे पहले मैनाक पर्वत क्या कह रहा है? अपनी लेजीनेस छोड़ो, फिजिकल लेजीनेस। आपके रास्ते में जो ऑब्स्टेकल्स आ रही है ना, आपको इधर उधर भटका रही है, चल थोड़ा आराम कर ले, चल थोड़ी शॉपिंग कर ले, चल जा रही हूँ रास्ते में एक शॉप आ गई, चल यहाँ से एक सूट ही खरीद लेते हैं, चल यहाँ से एक मैं फुटवेयर ही खरीद लेती हूँ, ओ सेल का बोर्ड दिख गया, फिर तो हम रुक ही जाते हैं। राइट? बट जो काम करने जा रहे हैं पहले वो करेंगे। दिस इज वॉट दिस थिंग इज सेइंग। सो उसके बाद हम बात कर रहे थे, मैनाक पर्वत के बाद उनको सुरसा दिखती है। अगेन अगले वाले दोहे ये सारे वही हैं। सो अगर आप पहले ये एक फर्स्ट दोहे के बाद वाला जो पार्ट है या इनिशियल आप पढ़ोगे, तो उसमें यही है कि जो आप काम करने आए, आपकी टेस्टिंग होगी, आपको ट्रैफिक जैम मिलेगा। ठीक है? सुरसा क्या है? देवताओं ने भेजा था सुरसा को कि देखो इनको, देखो ये कैपेबल भी है कि नहीं है। हम कोई डील करने जा रहे हैं, रास्ते में ट्रैफिक जैम हो गया, रास्ते में कोई हर्डल आ गया, कोई आपको कॉल आ गई, नहीं अर्जेंट कॉल है, घर आओ जल्दी आओ, या कोई फ्रेंड की कॉल आ गई, चल छोड़ काम कल कर लेना, आज कॉफी पीने चलते हैं, आज हम लोग चल शॉपिंग करने चलते हैं। सो व्हाट हाउ डिटर्मिन्ड यू आर हियर। यहाँ पर कितना ज्यादा आपको डिटर्मिनेशन है जो आप काम करने जा रहे हो, कि राम काज कीने बिना मुझे कहाँ आराम। तो मैं बिल्कुल नहीं रुकूंगी जब तक मेरा ये काम नहीं हो जाता है। ये सारे जो एपिसोड्स हैं जो रामायण में हुए या इधर हुए, सुंदरकांड के बीच में हुए, सो ये सारे हमें कोई ना कोई मैसेज देते हैं। तो सुंदरकांड की बुक आएगी अनदर 4-5 मंथ्स में, उसको पढ़ना। उसमें हर एक चीज की, एक एक वर्ड की इसी तरह से सिंबॉलिक डिस्क्रिप्शन दी गई है। यहाँ पे कोई क्वेश्चन है आपको? नहीं तो फिर अगला टॉपिक पढ़े, पंचमुखी हनुमान। मैम, भैरव जो चैंटिंग करनी है हनुमान चालीसा से पहले, ये कितने टाइम करनी है? हाँ, आप एक माला कर सकते हो। मैम, ये मैम कोई ट्यूसडे और सैटरडे को ही करना है सेम टाइम डे पे? देखिए, ट्यूसडे सैटरडे कर सकते हैं, लेकिन अगर आप रोज करेंगे तो नथिंग लाइक इट। नहीं, जो दोनों मतलब हनुमान जी की और वो भैरव जी की, दोनों की इकट्ठी कह रही हूँ मैं। हाँ, मैं वही कह रही हूँ। आप ट्यूसडे और सैटरडे भी कर सकते हो, लेकिन आप एवरी डे भी, अगर आपके पास टाइम अलाउ करता है, यू कैन डू एवरी डे ऑल्सो। ओ, अगर आप रोज हनुमान चालीसा पढ़ते हो, तो आप बेशक 3 बार या 9 बार ओम भैरवाय नमः भी कर सकते हो। मैम ये कोई भी कर सकता है? कोई भी कर और सकते। जैसे मैम मैंने वो आपका पॉडकास्ट देखा था, उसमें आप कहते हैं ना बजरंग बाण बहुत शक्तिशाली है तो उसका ज्यादा नहीं करना चाहिए। जैसे मैं हर रोज एक बार पाठ करती हूँ मैम, तो वो कर सकते हैं मॉर्निंग में हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और हनुमान अष्टक?
तीनों का हाँ, कर दूं? आप कर सकते हो, लेकिन मेक श्योर आप अगर कर रहे हो तो ऐसे ही नहीं करना है। जैसे हनुमान चालीसा तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, सुंदरकांड हम ऐसे भी कर सकते हैं, पर बजरंग बाण आप किसी पर्पज से करिएगा। व्हेन यू हैव अ पर्पस, आप किसी चीज के लिए कुछ एनर्जी क्रिएट करना चाहते हैं, देन यू डू बजरंग बाण, बिकॉज इट्स क्वाइट पावरफुल। अभी तक तो मैम मैंने ऐसे ही किया, ऐसे कुछ पर्पस से नहीं किया, मतलब बस तो मन फिर में उसको आ। पर्पस दे दो, उसको बीइंग अ प्राणी हीलर यू नो हाउ टू डिक्री। ओके मैम, या ठीक है, थैंक यू मैम। Then is Panchmukhi Hanuman and Bhairav connection. Panchmukhi, a five-faced form of Hanuman, is one of the most powerful and esoteric forms of in the entire Hanuman tradition. The five faces are Hanuman East for purification and blessings, Narsim South for destroying fear and evil, Garud West for removing poison and black magic, Vara for north for prosperity and protection of earth, and Hayagriva, he is looking upward towards sky for wisdom, learning, and cosmic knowledge. In some tantric traditions, particularly in South India and in Natha Sampradaya, the sixth phase is described as in the deepest level of Panchmukhi meditation, and this sixth phase, looking downward into earth, is the face of Bhairav. This form sometimes is called Shanmukhi Hanuman in the rarest tantric texts. Represents Hanuman's complete embrace of all Shiva's expressions, including the darkest and most transformative. The worship of Panchmukhi Hanuman is considered supremely effective for protection against all forms of negativity, and the reason, according to this tradition, is that it encompasses not only Hanuman's own divine power but also the full spectrum of Shiva's protective manifestations, including Bhairav's absolute sovereignty over all forces of darkness. Bhairav and Hanuman are two hands of Shiva's protection. One terrifies evil and other annihilates it through the radiance of Ram's name. Together they guard the devotee from both the outer and the inner darkness. So एक मेडिटेशन है जो कि अगर मुझे ये कभी गाइडेंस आई कि मैं वो आगे सिखाऊं, जो कि अभी तक मैंने नहीं सोचा है, बट जो मुझे लग रहा है कि ये जो बुक्स हैं ये प्रॉपर एक इसका पर्पस कुछ और है शायद, मैं अभी बोलना नहीं चाहती। तो उसमें एक मेडिटेशन है, हाउ टू आइडेंटिफाई भैरव एंड हाउ टू आइडेंटिफाई हनुमान। दोनों हमारी सांसों में है, लेकिन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो भैरव है, वहीं पर भैरव है वहीं पर हनुमान है, दोनों सेम है, कोई फर्क नहीं है दोनों में। लेकिन उनको आइडेंटिफाई कैसे करना है, ये अगर आने वाली टाइम पे मैंने वो साधनाएं सिखाई जो मैं खुद प्रैक्टिस कर रही हूँ, अगर गुरुजी की इजाजत हुई, देन वी कैन डू इट। बट इफ वी आर एबल टू डू इट, देन बहुत सारी चीजें जो हैं वो दिखनी शुरू हो जाती हैं। बहुत सारे ड्रीम्स में बहुत कुछ आपको समझ आना शुरू हो जाता है। जो गुरु हैं वो खुद प्रकट होके आपको आपके ड्रीम्स में या आपकी मेडिटेशंस में आपको कुछ बताते हैं। देन आपको इंट्यूटिव आपकी पावर्स बहुत बड़ी हो जाती हैं, आपको फिजिकल आई से चीजें दिखनी शुरू हो जाती हैं, आपको समझ आ जाता है, आपको किसी को देख के समझ आ जाता है ये क्या है, बिकॉज आपका जो प्राण है वो इतने जबरदस्त जागृत हो जाता है, वो इतना ज्यादा एक्टिव हो जाता है कि आप जो है वो आइडेंटिफाई कर पाते हो। आप किसी के सामने, आपके सामने कोई होता है, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि व्हाट दिस पर्सन इज सेइंग, क्या ये जो पर्सन है इसकी जो एनर्जी है, इसकी जो ये बोल रहा है, इसके वर्ड्स और इसकी जो इंटेंशन है, क्या वो मैच कर रहे हैं, क्या उसकी फेस एक्सप्रेशंस और उसके वर्ड्स मैच कर रहे हैं। यू स्टार्ट टू एनालाइज इट ऑन इट्स ओन, यू डोंट हैव टू मेक एन एफर्ट टू आइडेंटिफाई। सो इतना ज्यादा आपके प्राण जो है वो शुद्ध, उनका शुद्धिकरण हो जाता है, इतना आपकी बॉडी में इतने फिजिकली आप में इतने चेंजेस आने लग जाते हैं। आप अ, अ, लोगों को समझ नहीं आता है, बट
there is some difference, that people see, that you also feel that yes, there is a difference. So that is that sadhana, and that is very very powerful. उसमें कुछ नहीं करना है, just need to focus on your breath in a particular way. सो विज्ञान भैरव तंत्र हमें बताता है 112 तरह से कैसे हम लोग मेडिटेट कर सकते हैं, ठीक है। एंड उस उन्हीं 112 जो वो मेडिटेशंस हैं, उनमें ही ये सारा का सारा ज्ञान छुपा हुआ है। बस वी नीड टू आइडेंटिफाई। वही चीज हनुमान करते हैं, वही चीज हमारे शिव सूत्रों में भी लिखी हुई है भैरव के बारे में। सो ये सारी चीजें हैं, ये बहुत ज्यादा इंटरकनेक्टेड हैं। और जरूरी नहीं है कि आप ये साधनाएं करेंगे तभी आपको समझ आएगी। आप जो अपनी साधनाएं कर रहे हैं, आप जो अपनी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, उनमें भी ये होता है। ये हुए बिना आप ऊपर नहीं जा सकते। जब तक हनुमान आपके अंदर जागृत नहीं होंगे, आपकी कनेक्शन विद राम और सीता नहीं बनेगा। बट हम लोग इसी चीज को हम अलग अलग नाम देते हैं। होता वही है, सबके अंदर वही होता है, यही एक रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है, वेज डिफरेंट है। आपने दिल्ली जाना है, आप वाया चंडीगढ़ जाओ, आप वाया लुधियाना जाओ, और आप घूम के जाओ, कहीं से पहुंचना सबने वहीं पर ही है। अल्टीमेट डेस्टिनेशन राम ही है, अल्टीमेट डेस्टिनेशन सुप्रीम पावर से एक होना ही है। बट देर आर डिफरेंट वेज। और आपको लेके कौन जा रहा है? आपकी ब्रेथ ही लेके जाएगी। आप ब्रेथ वर्क करो चाहे ना करो। डिफरेंट ट्रेडिशंस में डिफरेंट वेज ऑफ जो मेडिटेशंस होती हैं, उसमें काम वही हो रहा है, बट उस काम को, उस चीज को जागृत करने के तरीके अलग अलग हैं। और यहाँ पर दिस इज द डायरेक्ट वे टू एक्टिवेट दिस पर्टिकुलर एनर्जी। एक आपको होमवर्क देती हूँ आज। आज आप ये मुद्रा लगाएंगे। सो योर लिटिल फिंगर, योर रिंग फिंगर टचिंग द थंब, दिस इज प्राण मुद्रा। दिस इज प्राण मुद्रा। सो प्राण मुद्रा आप अगर लगाते हैं तो आपके अंदर एक प्राणिक हीलिंग लैंग्वेज में कहेंगे तो आपका स्प्लीन चक्र एक्टिवेट होता है। स्प्लीन चक्र एक्टिवेट होने से देयर इज लॉट ऑफ prana etheric energy entering your spleen and filling your body with lot of energy. So if you are tired, if you feel you are drained, if you feel you do not, your body does not have energy, just put your hands in this mudra and keep this mudra for at least 10 to 15 minutes. आपको 2 मिनट के अंदर ही डिफरेंस पता चलना शुरू हो जाएगा। आप कोई भी काम करो, जैसे अभी आप सेशन ही लगा रहे हो ना, आप कुछ नहीं करना है, आपको ब्रीदिंग भी नहीं करनी है, आपको कहीं मेडिटेट नहीं करना है। सिंपली पुट दिस मुद्रा एंड सी योर बॉडी फिलिंग विद लॉट ऑफ एनर्जी। सो व्हाट हैपेंस, जब आप ये करते हैं तो ये मुद्रा लगाते हैं, ये मुद्रा लगाने से देयर इज लॉट ऑफ प्राणा फ्लोइंग इन योर बॉडी, और वो प्राणा जो है वो आपके ब्लड में मिक्स होके सारी बॉडी में वो रोटेट होता है, और हर बॉडी के हर एक पार्ट में आपको एनर्जी फील होती है, यू फील एनर्जेटिक। सो दिस इज प्राण मुद्रा, ठीक है। तो आप इसको अभी लगा के देखिए एंड यू जस्ट टेल मी व्हाट हैपेंस टू योर एनर्जी बॉडी, व्हाट हैपेंस टू द हाउ एनर्जेटिक यू फील। सो ये जो है ये इससे कनेक्टेड है कहीं ना कहीं, मैं अभी नहीं बताऊंगी, सेकंड बुक में पढ़ेंगे आप। ये जो सेकंड बुक पंचमुखी हनुमान जी के ऊपर आएगी, उसमें मैंने इसका कनेक्शन पंचमुखी हनुमान जी के साथ क्या है प्राण मुद्रा का, ये मैंने बहुत डीपली बताया है। और जो पंचमुखी हनुमान है या जो षण्मुखी हनुमान है, ये तांत्रिक हनुमान है। दिस इज अ तांत्रिक स्वरूप ऑफ हनुमान। क्योंकि जो पंचमुखी हनुमान, जो हनुमान जी ने ये स्वरूप लिया था, वो स्वरूप एक तांत्रिक को खत्म करने के लिए ही लिया था। क्योंकि ये जो तांत्रिक था, ये राम और लक्ष्मण का हरण करके ले गया था, उनको किडनैप करके ले गया था और पाताल लोक में ले गया था। अब पाताल लोक क्या है, ये क्या है, ये सब सेकंड बुक जब आएगी हम उसमें पढ़ेंगे। पाताल लोक में ले गया था और वहां पर ही वॉज अबाउट टू किल बोथ ऑफ देम, तंत्र के साथ, तो उनकी बलि देने वाला था, ठीक है। और वहां पर हनुमान जी पहुंचे थे और हनुमान जी ने वहां पर पंचमुखी हनुमान जी का रूप धारण किया था, जिनके 5 मुख थे। एक पहला हनुमान का था, फिर नरसिंह का था, वारा का था, गरुड़ का था और हयग्रीव का था। ये 5 मुख उन्होंने लिए थे और ये पांचों मुख लेके उन्होंने वो जो अहिरावण था उसका वध किया था। उन्होंने जो
5 एलिमेंट्स को उस राक्षस ने कंट्रोल करके रखा हुआ था, उन्होंने वन गो में उन पांचों जो वो जो एनर्जीज थी उनको खत्म कर दिया था, और जो पंच तत्व थे वहां पे उनको बैलेंस कर दिया था, और वो जो राक्षस था उसकी डेथ हो गई थी। इसके पीछे बहुत इतना डीप मीनिंग है कि मैंने पूरी बुक लिख डाली है उस एक से एक छोटी सी स्टोरी के ऊपर ये सारी बुक है पंचमुखी हनुमान। और कैसे हमारा मानसून हम इफेक्ट होता है इसी एनर्जी से रिलेटेड, कैसे हमारी लाइफ इफेक्ट होती है इसी से रिलेटेड। जैसे आपने देखा कि जो ये गरुड़ का जो हमारा इनका फेस है, जो थर्ड फेस है, जो वेस्ट फेसिंग है, वो किसी भी तरह का ब्लैक मैजिक होता है उसकी एनर्जी को, नेगेटिव एनर्जी को खत्म कर देता है। लेट मी शो यू पंचमुखी हनुमान, गिव मी 1 मिनट। So this is Panchmukhi Hanuman. Okay. So एक हॉर्स फेस है, एक वारा फेस है, एक नरसिंह का फेस है, एक गरुड़ का फेस है, और जो फ्रंट वाला ये फेस है, दिस इज हनुमान जी फेस इटसेल्फ। जो मैंने आपको प्राण मुद्रा बताई है, दैट कनेक्ट्स विद हनुमान जी ओन फेस। ठीक है। तो जो पंचवायु हैं, ये पंचवायु इन सबसे कनेक्टेड हैं, और बहुत डीप कनेक्शन है हमारा इनके साथ, के हमारी बॉडी के साथ। ये पूरी हमारी बॉडी कैसे हम लोग बेटर कर सकते हैं, अपनी लाइफ को कैसे बेटर कर सकते हैं पंचमुखी हनुमान जी की साधना करने से, ये हम सेकंड बुक में डीपली पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में। The worship of Panchmukhi Hanuman is considered supremely effective for protection against all forms of negativity, and the reason, according to this tradition, it is that it encompasses not only Hanuman's own divine power but the full spectrum of Shiva's protective manifestations, including Bhairav's absolute sovereignty over all the dark forces. Okay, so Bhairav and Hanuman are two hands of Shiva's protection. One terrifies the evil, and other annihilates it through the radiance of Ram's name. Together they guard the devotee completely from both the outer world and the inner darkness. So इसलिए दोनों की साधना बहुत जरूरी है। So हम कोई भी साधना करते हैं, स्टार्टिंग में भैरव जी का नाम लीजिए। सबसे पहले कौन किसकी पूजा करते हैं हम? हु इज प्रथम पूजनीय? गणेश जी। सरस्वती जी। तो सबसे पहले कोई भी साधना करें, कोई भी पूजा पाठ शुरू करें, सबसे पहले ओम गंगणपतये नमः, ओम गंगणपतये नमः, ओम गंगणपतये नमः 3 बार गणपति जी का आवाहन कीजिए। फिर 3 बार ओम भैरवाय नमः, ओम भैरवाय नमः, ओम भैरवाय नमः फॉर द प्रोटेक्शन। देन स्टार्ट योर साधना वट एवर यू आर डूइंग। देन लास्ट में हनुमान चालीसा करिए। दिस विल मेक योर होल साधना कंप्लीट, पूरा कंप्लीट साधना। कोई भी देवी की साधना कर रहे हैं आप, विष्णु जी की साधना कर रहे हैं आप, कोई भी साधना कर रहे हैं, उसको आप इस सीक्वेंस में करेंगे तो यू विल सी द डिफरेंस। अब मंत्र चांटिंग को, जो भी मंत्र चांटिंग करते हैं, जैसे हम लोग भी जब साधना करते हैं, हम 10 महाविद्या की साधना करते हैं, हम श्री विद्या की साधना करते हैं, तब हम इसी सीक्वेंस से चलते हैं। ठीक है। Okay, next is Kashi connection, where Hanuman meets Bhairav. Varanasi, the eternal city of Shiva, the city of light. Kashi means the luminous, is the place where connection between Hanuman and Kal Bhairav is most visibly enshrined. The city has ancient temples to both, and in the traditional pilgrimage circuit of Kashi, both deities are essential stops. The Hanuman temple at Sankat Mochan Ghat, founded by Goswami Tulsidas himself, sit close to the Kashi Vishwanath temple complex, and the Kal Bhairav temple is considered the protector guardian of the entire city. Pilgrims in Kashi are instructed by tradition to receive the blessings of Kal Bhairav as the city's Kotwal. Kotwal is the protector.
and Hanuman as Sankat Mochan, the remover of crisis, before approaching Shiva himself in the Vishwanath temple. This sequence encodes a profound teaching. Bhairav prepares the devotee by confronting their fears, by purifying their karma. Hanuman then fills them with devotion and Ram's grace, and only the purified, fearless, and devotion filled does the devotee stand worthy before the Supreme Shiva in his most benevolent form of as Vishwanath, the Lord of Universe. So Vishwanath is basically the Lord of the Universe. Vishwanath. सो विश्व के जो किंग हैं, विश्व के जो ओनर हैं, विश्व के जो नाथ हैं, वो विश्वनाथ हैं, वो भगवान शिव हैं। तो उनका, और वहां पर ये हैं गणपति जी के जो हैं वो 56 स्वरूप हैं और अलग अलग जगह पर हैं। ठीक है। Kashi, where all three converge. The relationship between Hanuman and Kal Bhairav reaches its most complete and most architectural expressed form in the sacred city of Kashi, the city of Shiva, the domain of Bhairav, and the living body through which Hanuman breathes as its prana. It is in Kashi that all three guardians of liberation meet in one place and create the most concentrated field of liberation available anywhere on earth. यही कॉम्बिनेशन जो है वो जो काशी की सिटी है उसको सिटी ऑफ लिबरेशन बनाता है, उसको प्लेस ऑफ लिबरेशन बताता है। आप काशी जाते हैं और काशी में जाकर आप अगर ये इसी तरह से आप दर्शन वहां करते हैं तो वहां पर हम लोगों को ये कंप्लीट सर्कल बनता है। मैंने कल भी बताया था कि जब हम ऐसी जगह पे जाते हैं, हमारे अंदर जो वो स्पॉट्स हैं, हमारे अंदर जो वो एनर्जीज हैं, वो देवताओं का वास है हमारे अंदर, वो हमारे अंदर स्टिमुलेट हो जाता है और हमारे अंदर वो एनर्जी एक्टिव हो जाती है जो डोमेंट स्टेट में रहती है। काशी वेयर हेवन टचेस अर्थ। There are cities in the world, and then there is Kashi. No other city on earth carries the weight of sacred significance that Varanasi, known by its ancient name Kashi, meaning the luminous, the city of light, carries in the Hindu tradition. It is not merely the oldest continuously inhabited city in the world, though it is that. It is not merely a city of temples and ghats and the eternal Ganga, though it is that too. Kashi is a place where Shiva himself is said to reside permanently, not as a concept, not as an archetype, but as a living, breathing divine presence who permeates every stone, every alley, every burning heart, every breath drawn in that sacred atmosphere. The Skanda Puran, the largest of the 18 Mahapurans, and the primary scriptural source of Kashi's theology, declares Kashi is not in the world is in the Kashi. Please underline this. काशी ये यूनिवर्स में नहीं है, ये सारा जो यूनिवर्स है, ये जो सारी दुनिया है, ये काशी जी में बसी है। काशी जी का जो कहते हैं, जो भगवान शिव का त्रिशूल है, वो भगवान शिव के त्रिशूल के ऊपर काशी का वास है, काशी बसी हुई है। सो जो तीन जो उसके त्रिशूल के जो वो हैं, वो एक इज काशी विश्वनाथ, एक इज ओंकारेश्वर है, एक केदारनाथ। सो एक केदार खंड है, एक ओंकारेश्वर खंड है और एक विश्वनाथ खंड है। ये तीनों खंड वहां पर आज भी हैं, ये मंदिर हैं तीनों। यहाँ पर तीनों की जो मेजर एनर्जी ऑफ द दिस वर्ल्ड इज कॉन्क्रेटाइज्ड, वहीं से ये सारी जो सृष्टि है ये चलती है। This is what is written in our Puranas. And my favorite is Gauri Kedareshwar Mandir. It's a beautiful mandir. It's actually a beautiful mandir. And आप जाएंगे तो वहां की आप एनर्जीज आप उसको फील कर पाएंगे। और ओंकारेश्वर जो है, ओंकारेश्वर जो काशी जी में है, वो आप सोच भी नहीं सकते कि ये इतना पावरफुल मंदिर है। वहां कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं होता वहां पे। आसपास सारा मुस्लिम एरिया है। वहां पर इधर कब्र कब्र बनी हुई है, वहां पे मुस्लिम लोग, सारा मुस्लिम है, छोटी सी गली में जाके।
but very powerful, very very powerful energy. आई डोंट हैव एक्चुअली वर्ड्स कि मैं कैसे काशी को एक्सप्लेन करूं. जो नहीं गए हैं प्लीज जाइए. This is not a metaphor. The tradition teaches that the entire city of Varanasi rests on Shiva's own trident, Trishul, that it is literally held aloft above the ordinary world by the power of the divine will, and that what happens in Kashi has a cosmic significance that transcends what happens anywhere else on the earth. This is why death in Kashi is considered the supreme liberation, because Shiva himself is said to whisper the Tarak Mantra, the name of Ram, into the ear of every soul that departs from the city. इसीलिए कहा जाता है राम नाम सत्य है. जब किसी की डेथ होती है तो बोलते हैं ना राम नाम सत्य है. तो यही जो है ये, जब किसी की डेथ होती है उसके कान में यही बोला जाता है, राम का नाम बोला जाता है. ममता जी चलेंगे बहुत जल्दी. Ensuring their liberation regardless of their accumulated karma. Kashi is also inseparably the city of Hanuman. And to understand why, to understand the depth of the specificity of Hanuman's relationship with the sacred city, is to understand something fundamental about both. Then is Tulsidas, Hanuman, and the transformation of Kashi. The most visible and most historical documented dimension of Hanuman's relationship with Kashi is through the life and the work of Goswami Tulsidas ji, whom we explored in detail in chapter 17. But the significance of Tulsidas' presence in Kashi and his founding of Sankat Mochan temple deserves a deeper examination here. Tulsidas spent the last and most productive decades of his life in Varanasi. He arrived as a wandering sadhu, already a realized devotee, already carrying within him the vision of the Ramcharitmanas that Hanuman had commissioned him to write. He settled near Tulsi Ghat, named after him by later tradition, in the Assi Badaini area of Varanasi. So basically वाराणसी जो है वो दो नदियां हैं जो मर्ज होती हैं गंगा जी में. एक है वरुण और एक है असी. सो वरुण जो है नदी है वो राजघाट में जो है वो मर्ज होती है गंगा जी में. वहां पे संगम होता है. और अस्सी नदी आगे जाके अस्सी नदी जो है वो मर्ज होती है. तो ये जो एरिया है जो वरुण से अस्सी, ये जो सारा एरिया है, और ये क्रीसेंट मून की शेप में, इज इन द शेप ऑफ क्रीसेंट मून. देयर इज अ फ्लाईओवर काशी में. आप वहां पर खड़े होते हैं, वहां पर बाइक पे जाना पड़ेगा. बाइक पे ही जाके आप वहां पर कर सकते हैं, नहीं तो कार्स को वहां रोकने नहीं देते हैं. तो वहां पर जाके अगर आप रात को जब मैं गई थी पहली बार तो मैं रात को गई थी, और रात को पूरी लाइट्स जलती हैं. इट्स लाइक अ क्रीसेंट मून, लाइक पूरा लाइट से भरा होता है. जैसे नरीमन पॉइंट है मुंबई में वैसा ही बनता है, बट इट्स लाइक अ पूरा क्रीसेंट मून. और वही क्रीसेंट मून जो है वो वहां से उतना ही ये सारे घाट हैं, और वहां पे बहुत सारे घाट हैं. और ये जो इतना एरिया है यही काशी खंड कहलाता है. ठीक है. द संकट मोचन टेम्पल. Okay. And it was there that he composed, recited, discussed, and taught the Ramcharit Manas for the rest of his life. The Sankat Mochan Hanuman temple that Tulsidas founded, according to the tradition, at the very spot where Hanuman had appeared in him in full form, full divine form before the dawn, became in time one of the most important temples in all of the northern India. The temple's name carries its complete theology. Sankat Mochan means the remover of all the crisis. Kashi, as Shiva's city, is the remover of ultimate crisis, death and the suffering of repeated birth. And Hanuman, as Sankat Mochan, removes every form of crisis that the soul encounters on its journey towards the ultimate liberation. और क्या क्या काटते हैं हमें पता है. हनुमान जी क्या निकालते हैं? मैनाक पर्वत, सुरसा, देन दिस सिंहिका, देन लंकिनी. ठीक है, इन सबको मारते हैं.
ये सब कहाँ है? ये सब हमारे अंदर है। कैसे मारते हैं? जब हमारे सांस एक्टिवेट हो जाते हैं, जब हमारी कॉन्शियसनेस सुषुम्ना में चली जाती है, फिर वो क्या करते हैं? वहां जाते हैं, लंका जाते हैं। लंका क्या है? लंका हमारी अपनी बनाई हुई ईगो की एक टेरिटरी है जो बहुत सुंदर लगती है। मेरा घर सबसे सुंदर, मेरे पास मर्सिडीज, ये लंका है हमारी, हमारी ईगो ने बनाई हुई है। ठीक है। और हमारे अंदर रावण है बैठा, जो ईगो हमारे अंदर बैठी है वो हमारा रावण है। तो हनुमान क्या करते हैं? पहले तो सबसे पहले जाके लंका को जलाते हैं। तो जब हमारे सांसों में हनुमान जी एक्टिव होते हैं तो क्या होते हैं? धीरे धीरे हमारी ये जो लंका है ये भस्म होनी शुरू हो जाती है, जलनी शुरू हो जाती है। हम लोगों को ये रियलाइज होना शुरू हो जाता है, दिस इज नॉट एवरीथिंग। ठीक है, ये है मेरे पास, आई विल एंजॉय इट व्हेन इट इज टाइम टू एंजॉय, बट this is not the ultimate truth. The ultimate truth is Ram. The ultimate truth is the meeting with the divine. And this is what we all are born for. हमारा सबका जन्म लेने का मकसद मोक्ष ही है। और वो इस लाइफ टाइम में मिलेगा कि नेक्स्ट लाइफ टाइम में मिलेगा, कि 10 लाइफ टाइम्स में मिलेगा, कि 50 लाइफ टाइम्स में मिलेगा, बहुत कुछ हमारे ऊपर भी डिपेंड करता है। हमारे पास फ्री विल है अपना रास्ता चुनने के लिए। हमारे पास, हमें बहुत सारी, हम सब लोग जितने भी लोग यहाँ पर हैं या जो मेरे साथ में को इसको बाद में सुनेंगे, जो रिकॉर्डिंग सुनेंगे, हम सब अगर ये सुन रहे हैं, कहीं ना कहीं हम लोग आध्यात्मिक पथ पे चल रहे हैं, हम लोग स्पिरिचुअल पाथ पे ऑलरेडी हैं। लेकिन होते हुए भी क्या हम उसको फॉलो कर रहे हैं? क्या हम अपनी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। तो क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि वही मैनाक पर्वत ने कहा रुक जाओ, तो हम रुक गए थे। सुरसा ने हमारा टेस्ट लेने के लिए कहा कि हाँ मैं तुम्हारा टेस्ट लेती हूँ, तो हम टेस्ट में फेल हो गए। तो हमने कहा अच्छा ठीक है, ऐसा है तो फिर बैठ जाते हैं। वो हम हार गए टेस्ट में। हमारी छाया मतलब हमारी इल्यूजन्स ने हमें पकड़ लिया, हमारी सिम्हिका ने हमें पकड़ लिया, तो हम रुक गए। ठीक है। तो लंकिनी क्या है? हमारी जो ईगो की टेरिटरी है, लंका की टेरिटरी है, उसकी अधिष्ठात्री है, उसको कंट्रोल कर रही है। जब हम उसको एंटर करने लगते हैं ना अपनी लंका में, तो वो जो लंकिनी है वो रोकती है। बट वो बहुत जल्दी मान भी जाती है, वो बहुत जल्दी एंट्री भी दे देती है। वो हनुमान जी है, उसका एक मुक्के से मर जाती है। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हमें क्या करना है कि हमें अपने सांसों में बस हनुमान जी को जागृत करना है। और फिर हमारी ये जो सारी इल्यूजन्स हैं, सारी हमारी लाइफ में जो ये इश्यूज हैं, ये रिजॉल्व होके हमारा जो सफर है फ्रॉम सीता टू हनुमान, फ्रॉम सीता टू राम एंड फ्रॉम राम टू सीता, ये हमारा इजी कर देते हैं। हमारी स्पिरिचुअल कॉर्ड, हमारा अंतःकरण डेवलप होने लग जाता है, और हमारी स्पिरिचुअल जर्नी फास्ट फॉरवर्ड होके बहुत जल्दी फिर राम जो है वो आके रावण का वध करते हैं। फिर हम पुष्पक विमान में बैठ के अयोध्या जाते हैं, और अयोध्या जाते हैं तो फिर हमारा राम राज्य बन जाता है। और वही हमारी अल्टीमेट डेस्टिनेशन है। अल्टीमेट डेस्टिनेशन रावण को मारना नहीं है, अल्टीमेट डेस्टिनेशन राम राज्य स्थापित करना है। कैसे करना है? 5th बुक में पढ़ेंगे। And Hanuman as Sankat-mochan removes every form of crisis that the soul encounters on its journey towards ultimate liberation. In Kashi, these two liberating forces meet in one place, Shiva's city and Hanuman's temple, death's dissolution and life's protection, the absolute and the accessible. The Sankat-mochan temple has a specific quality that long-time devotees describe consistently. It is one of the few major temples in India where the deity is experienced not as an image of stone but as the living presence. जो जाएंगे वहां पर, जो जाते हैं वहां पर, उनको वहां पर प्रेजेंस फील होती है, रोंगटे खड़े होते हैं। आरती करो, आंखों में से पानी आता है, सुषुम्ना चलती है। जो गए हैं वहां पर वो मेरे साथ एग्री करेंगे। The atmosphere of the temple, particularly in early morning when the first aarti is performed in the darkness before the dawn, and with the sounds of bell and the fragrance of flowers and the muffled sound of the sleeping city outside, is described by those who have sat there as unlike any other spiritual environment. It is the environment of being of a being who is genuinely present, who is listening, and who sees you. When you look at the idol of Hanuman ji, that is a very purani wali wo bani hui hai. It's not a face, proper face. It is a very different murti. When you look at that murti, you feel something, something
एक्टिवेट्स समथिंग इनसाइड यू, और सुषुम्ना फुल फ्लो में आती है. Kashi as the body of Shiva, Hanuman as its breath. The theology of Kashi describes the entire city as the body of Shiv. Every stone, every lane, every burning heart, a different organ or a limb of the divine form of that Shiva inhabits. The Ganga is the hair as she flows from the mated locks. The Kashi Vishwanath temple is his heart, Manikarnika Ghat, where bodies have burned continuously for millennia without a pause, is the cremation fire in his third eye. In this theology, if Kashi is the body of Shiv, then Hanuman as the Shiva's avatar, as the breath of Vayudev, is Kashi's prana. He is the force that animates the divine body. The city breathes because Hanuman's pran moves through it. The mantras recited in the 1,000 temples every morning are the city inhaling. The prayers whispered at the ghats every evening are the city exhaling. And at the center of it all, in the Sankat Mochan temple, set within its own sacred forest near BHU. BHU is the Banaras Hindu University campus. In the southern part of Varanasi, the heartbeat of that prana is most directly felt. It is not merely poetic imagery. The traditional the tradition of Kashi temple circuit, the Panchkoshi Yatra, this is what we are going to do in November. The pilgrimage that circumambulates the sacred boundaries of the city, places specific Hanuman shrines at specific points along the route, as through Hanuman's presence marks the energy meridians of the city's subtle body, the way the chakras mark the meridians of the human subtle body. He is the guardian of the city's four directions, the protector of its energy field, the being whose presence ensures that divine atmosphere of Kashi remains intact against all the forces, material, psychic, and karmic, that might otherwise diminish it. This was the reason I wanted to take स्टडी सेशंस ऑफ दिस बुक, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि जो मैं बताना चाहती थी वो शायद मैं अपने वर्ड्स में पूरी तरह नहीं दे पाऊंगी. चाहे इस बुक में बहुत कुछ है, बट व्हाट इज माय थॉट बिहाइंड, व्हाट इज मेरी सोच क्या है उसके पीछे, मेरा मेरा इमोशन क्या है उसके पीछे, और वो बताना मुझे लगता है कि मुझे इसलिए लगा कि मुझे इस बुक को पढ़ाना चाहिए, ताकि उसका जो एसेंस है मैं बेटर वे में बता सकूं, जो कि मैं वर्ड्स में उनको नहीं लेके आई हूँ. Kal Bhairav and Hanuman connection in Kashi. We explored the relationship between Hanuman and Kal Bhairav in chapter 12. But nowhere in this relationship merely concretely and more architecturally expressed than in Kashi. Kal Bhairav is the Kotwal of Kashi, the divine magistrate, the cosmic policeman who guards the sacred city and administers its spiritual law. Every pilgrim who comes to the Kashi is required by deepest tradition to seek the blessings of Kal Bhairav before approaching Shiva at the Kashi Vishwanath temple. Bhairav prepares the devotee. His darshan confronts the ego with its own mortality, dissolves the accumulated karma that would otherwise create obstacles in the sacred city, and opens the consciousness of the deeper blessings that flow. So क्या है, पहले हम लोगों को काल भैरव मंदिर जाना है. काल भैरव मंदिर जाने से, काशी विश्वनाथ भगवान के दर्शन करने से पहले, मेन मंदिर जाने से पहले हमें काल भैरव मंदिर जाना है, ताकि हमारी प्यूरिफिकेशन हो सके. हम प्यूरिफाई होके, हम अपने फियर्स को निकाल के, हम उन सब नेगेटिविटी को खत्म करके, फिर जब हम, दिस इज क्लेंजिंग बिफोर एनर्जाइजिंग. ठीक है, तो पहले हम अपने आप को जाके क्लीन करेंगे. हम भैरव बाबा के मंदिर जाएंगे, वहां पर हम हाजिरी लगाएंगे. अगर आपको मौका मिलता है, आपका कोई कनेक्शन है, वहां पे आरती देखिए, शयन आरती देखिए, सुबह की आरती देखिए, आप वहां पर आरती देखिए, अपने आप को प्यूरिफाई कीजिए. उसके बाद आप जाइए काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए प्यूरिफाई होके. The traditional pilgrimage sequence within Kashi encodes the complete spiritual journey is spatial form. First, Kal Bhairav to face ego's deepest fear, death.
and have it dissolved. Second, Sankat Mochan Hanuman to receive the grace that fills the space left by the dissolved ego to be filled with Ram's name and Ram's light. Third, Kashi Vishwanath to stand before Shiv himself in his most benevolent form, having been prepared by Bhairav's dissolution and Hanuman's grace. This sequence is profound. Bhairav takes away what should not be there, fear, accumulated karma, and ego's armor. Hanuman gives what should be there, devotion, courage, Ram's name as the living presence, and Shiva receives what remains, the purified, grace-filled, devoted soul who has nothing left to hide and nothing left to fear. The three together form the complete initiation of काशी. सो दिस इज द वे आपको काशी जी के दर्शन करने हैं. बाकी के जो भी दर्शन रहते हैं, जो अगर आप बाकी जगह जाना चाहते हैं, उसके बाद आप जाइए गौरी केदारेश्वर मंदिर जाइए, देन आप ओंकारेश्वर जा सकते हैं, देन बाकी के जो मंदिर हैं आप वहां पर जा सकते हैं. बट ये जो कंप्लीट सर्किट है इसको हमें कंप्लीट करना है. द गंगा, राम्स नेम, हनुमान्स इटर्नल विटनेसिंग. इसको कल करते हैं. या ये वाला ही कर लेते हैं, गंगा जी वाला. ठीक है. In Kashi tradition, there is a specific teaching about relationship between Ganga, name of Ram, and Hanuman that illuminates all three simultaneously. The Ganga is not merely a river. In the theology of Kashi, the Ganga is a visible form of the divine grace that descends from the highest realm to meet humanity at the level of earth. She is Shiva's own consciousness flowing through the physical world, available to all who come to her banks. Skand Puran declares that Ganga in Kashi carries a specific quality of consciousness. बहुत कम जगह है इंडिया में जहाँ नॉर्मली जो गंगा जी का जो फ्लो है दैट इज साउथ, तो दक्षिण वाहिनी है मोस्ट ऑफ द प्लेसेस. बट जहां जहां पर गंगा जी उत्तर वाहिनी होती है, सो कुछ इस तरह से उनका फ्लो बनता है. जहां जहां पर गंगा जी नॉर्थ की तरफ उल्टा फ्लो कर रही, वो प्लेस जो है वो सेक्रेड हो जाती है. सो देर आर मेनी प्लेसेस इन इंडिया, मतलब फ्यू प्लेसेस इन इंडिया. काशी इज वन ऑफ देम एंड इट इज द प्लेस जहां पर गंगा जी हैं वो मैक्सिमम जो लेंथ है उनकी के लिए वो उत्तर वाहिनी होती है. सो वो मणिकर्णिका घाट से जो वो अगला वाला सारा पार्ट है वहां तक वो उत्तर वाहिनी होती है, इसीलिए उनकी पावर यहाँ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है. सो दिस इज one of the reasons Kashi is a very, very sacred place. Skand Puran declares that the Gangaji in Kashi carries a specific quality of consciousness, the consciousness of liberation itself, that she cannot carry elsewhere because in Kashi she flows through Shiva's own presence and is charged with his liberating energy. Ram's name is the Tarak mantra, the sound of liberation. And in Kashi tradition, the Ganga and Ram's name are considered the same liberation expressed in two different forms. One is liquid and another is sonic. Sonic matlab आवाज में. To immerse in Ganga is to be bathed in the Tarak mantra. To recite Tarak mantra is to be immersed in the Ganga's liberating current. They are the same grace wearing two different costumes. Hanuman is the being who never stops reciting Ram's name. Every breath is his Tarak mantra. And Hanuman is established in Kashi, the city through which the Ganga flows. The convergence is complete. The Ganga's liberating current, Ram's liberating name, Hanuman's liberating presence all meet in Kashi. The city is the point of maximum grace, the place where the universe's liberating energy is most concentrated, most accessible, and most continuously available to every human being who comes seeking. सो जब भी हम काशी जाते हैं, जब मैं काशी गई फर्स्ट टाइम, तो जिनके साथ में गई काफी लोग थे. हम लोग लाइक इट वाज अ रिट्रीट, प्राणिक हीलिंग रिट्रीट इन 2015.
तो बहुत सारे लोग, अरे कितनी गंदे है, कैसे गंद मचाया हुआ है, ये घाट कितना गंदा है, ये कैसे लोग हैं, ये पान फेंक रहे हैं इधर, ये कैसे, और मुझे कुछ नहीं दिख रहा था। मुझे काशी बहुत सुंदर लग रही थी। दैट वाज द टाइम, इट वाज माय फर्स्ट विजिट, एंड अगेन जैसे हम कल बात कर रहे थे, पार्ट ऑफ मी वाज लेफ्ट देयर। एंड देन वही भगवान कुछ ना कुछ मिरेकल्स भी करता है। सो वी वेंट फॉर काशी विश्वनाथ दर्शन। तो किसी ने बोला कि आपको ना अगर दर्शन करने हैं ना तो सुबह सुबह जाओ और वहां दर्शन करो, और आपको सुबह जाके खड़े हो जाना लाइन में। तो हम सब लोग थे, ऋतु वॉज विद मी, डॉक्टर ऋतु, और थे हम लोग, 4-5 लोग थे, हम लोग जाके लाइन में खड़े हो गए। एंड कुछ नहीं पता है, फर्स्ट टाइम गए हैं, जहाँ पे लाइन में खड़े थे वहां पे चले गए, और किसी ने कहा आत्मा नमस्ते, तो समझा ये प्राणी हीलर है, चलो कहाँ जाना है, इधर जाना है, इस लाइन में चलो, यहाँ खड़े हो जाते हैं। खड़े हो गए लाइन में, घंटा 1.5 घंटा खड़े रहे, 2 घंटे खड़े रहे, एंड देन वहां चले गए। एंड वहां अंदर जाके रियलाइज हुआ हमें, हम मंदिर के अंदर पहुंच गए हैं, गर्भगृह के अंदर पहुंच गए हैं, और वहां के जो पंडित जी हैं वो हमें बोल रहे हैं चलो स्नान कराओ, वो हमें पकड़ा रहे हैं, ये लो दूध, स्नान कराओ। वी वर जस्ट ऐसे ही चले गए थे, ना कोई किसी से पूछा, ना कुछ क्रिया किया हम लोगों ने। सो दैट वाज एक्चुअली अ डिवाइन ग्रेस, और मुझे ऐसा लगता है कि यही हमारे एक साइंस होते हैं कि हमें भगवान जब ऐसे कुछ, ऐसे हमारे साथ, आप सब लोगों के साथ भी ऐसे कहीं ना कहीं मिरेकल्स हुए होंगे, तो वो एक साइन होता है हमें बताने के लिए कि अगर आपको कोई स्पेशल अपॉर्चुनिटी मिल रही है, उसका प्राइड नहीं करना है, लेकिन आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि हाँ, मेरे से भगवान कुछ अगर मुझे स्पेशल दे रहे हैं, तो हो सकता है मेरे से कुछ स्पेशल करवाना भी चाह रहे हैं। एंड देन यू हैव टू आइडेंटिफाई कि अगर मेरे को ये स्पेशल वीआईपी दर्शन, भगवान ने अपने मंदिर में वीआईपी ट्रीटमेंट दिया है, तो मुझे वापस क्या देना है भगवान को, मुझे काशी विश्वनाथ को वापस क्या देना है, मुझे जो विश्व के जो लॉर्ड हैं, मेरे को उनको वापस क्या देना है, मुझे विश्व शांति के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, मैं उनका काम कैसे मैं फुलफिल कर सकती हूँ। देन यू हैव टू थिंक दैट वे। आप किसी गुरुद्वारे जाते हो, आपको एकदम से कोई पाठी जी आके बोलते हैं इधर से नहीं, आप इधर से निकल जाओ, ये छोटा रास्ता है, वो गुरुद्वारे की इंपॉर्टेंस क्या है, उससे रिलेटेड आपको, यू हैव टू गिव दैट डेटी बैक। आपने, अगर आपको किसी मंदिर में जाके वीआईपी ट्रीटमेंट मिला है, आपने उस डेटी को वापस क्या दिया, उन्होंने आपको वीआईपी ट्रीटमेंट दिया, आपने उनके लिए क्या किया। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जब हमारे साथ ऐसा होता है, तो हमें ये समझ, खुश नहीं होना, ओ वाओ आई एम वेरी इंपॉर्टेंट, देखो जी मैं तो इतनी महान, मेरे को तो ऐसे हो गया। नॉर्मली लोग ये बात करते हैं, बट व्हाट यू हैव गिवन बैक, बस आपने 500 रुपया वहां दक्षिणा दे दी, या 1000 रुपया दक्षिणा दे दी। बहुत लोग आते हैं लाखों करोड़ों रुपए देते हैं, ही डज नॉट नीड मनी, he needs your service, he needs your dedication, your devotion. So next time you get such importance or such facility in any place, at any place you go, at any ऐसे किसी बड़े मंदिर जाते हैं, तो सी मुझे वापस क्या करना है। So what he is asking, वो इसका मतलब ही है सीन सम कैपेबिलिटी, कि ये जो है ना, ये कुछ कर सकता है, चल वीआईपी दर्शन कर फटाफट से, तेरे को धक्के नहीं खाने, और अगर धक्के खाने पड़े उसमें भी लेसन है। उसमें लेसन ये है कि जब हम धक्के खा के किसी के दर्शन करने पहुंचते हैं, मतलब दर्शन करने से पहले हमारे बहुत सारे कर्म जो है वो कट गए। इसलिए धक्के पर धक्के पड़े हैं तो निराश नहीं होना है, और वीआईपी दर्शन मिले हैं तो प्राइड में नहीं आना है। दोनों में हमारा लेसन ही, ठीक है। तो आज के लिए हम यही वाइंड अप करते हैं, कल मिलेंगे 12:30 एंड वील ट्राई टू फिनिश दिस चैप्टर टुमारो, ताकि हम सैटरडे को फिर नया चैप्टर स्टार्ट कर सकें। मंडे वील नॉट हैव क्लास, क्योंकि मंडे को अगेन आई हैव टू, सैटरडे को मोस्ट प्रोबेबली आई विल बी गोइंग टू ऋषिकेश रात को, सो मंडे आई विल नॉट बी देयर। सो ट्यूसडे से अगेन वी विल रीस्टार्ट, एक दिन छुट्टी होगी। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं थैंक कल यू को मैम। टाइम। थैंक यू थैंक सो यू, मच। राम राम जी। राम राम जी, राम राम, थैंक यू।